السلام علیکم، سچ نیوز پر علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ سب سے پہلے آپ اس دعا کے ساتھ آغاز کریں گے، اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہمیں اس عید قربان کو ہمارے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کہ آرمی چیف کا عید الاضحیٰ پر LOC کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں کے ساتھ عید گزاری۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دشمن کے عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، پاک فوج مکمل تیار ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمارا دشمن پاکستان اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عید الاضحیٰ پر LOC کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں کے ساتھ عید گزاری۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم اپنے دشمن کے عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں، پاک فوج مکمل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن پاکستان اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط اور سادگی کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات منعقد ہوئے، جس میں علماء کرام نے فلسفہ قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی یکجہتی، وطن کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور مسلم ممالک میں جاری فتنہ فسادات کے خاتمے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ملک کی سلامتی، استحکام اور کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ لاہور میں بادشاہی مسجد سمیت دیگر مقامات پر بھی نماز کی ادائیگی کی گئی۔ ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ملتان میں دربار شاہ رکن عالم میں نماز عید ادا کی گئی۔ کراچی میں بھی مساجد اور عیدگاہوں میں بھی خصوصی اجتماعات ہوئے۔ لوگوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ کوئٹہ کے صادق شہید فٹ بال گراؤنڈ میں عید کی نماز ہوئی۔ شہر میں دیگر مقامات پر بھی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ پشاور میں بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ چارسدہ روڈ پر ہوا، جس میں سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ پر شہری سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں۔ سلسلہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا۔ پاکستان بھر میں عید کی خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ شہر شہر گاؤں گاؤں لوگ چھوٹے بڑے جانور قربان کر رہے ہیں۔ کسی نے گائے ذبح کی تو کسی نے اونٹ، بکرے، دمبے اور بھیڑ کی بھی قربانی کی جا رہی ہے۔ لاہور میں شہریوں کی بڑی تعداد نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، سرگودا، گجرانوالہ اور فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں بھی لوگ اپنے جانور قربان کر رہے ہیں۔ شہر قائد میں بھی اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دفعہ اجتماعی قربانی زیادہ دیکھی گئی۔ سندھ حکومت کی جانب سے بھی شہریوں سے اجتماعی قربانی کی اپیل کی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھر میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ سیاسی شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں سادگی سے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر SOPs کا بھی خیال رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور نے نماز عید گورنر ہاؤس میں ادا کی، جس میں ملک کی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے عید الاضحیٰ کی نماز اراکین صوبائی اسمبلی، گورنر ہاؤس کے افسران اور دیگر ملازمین کے ہمراہ گورنر ہاؤس کی مسجد میں ادا کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے عید کی نماز گورنر ہاؤس پشاور میں ادا کی۔ اللہ اکبر۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں عید کی نماز پڑھی، سماجی فاصلے رکھتے ہوئے لوگوں کو عید کی مبارک دی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں نماز عید ادا کی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پر نماز عید ادا کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ میں نماز عید ادا کی۔ ادھر پشاور میں بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ شہریوں نے کورونا سے جاں بحق افراد کے درجات کی بلندی اور بیماریوں کی جلد شفا یابی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ رپورٹ کریں گے عدنان شاہد۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میں منعقد ہوا، جس میں شہریوں سمیت سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اس سے بہتر کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہیں ہے۔
ईद उल अजहा के मौके पर पेशावर की मरकजी ईदगाह में शहरियों की बड़ी तादाद ने SOPs पर अमल दरामद करते हुए नमाज अदा की। इस मौके पर अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बिलोन ने मुल्क में एक ईद को खुश आइन करार दिया। तमाम दुनिया के तमाम दूसरे इस्लामी ममालिक वो जो है वो सब के सब एक मक्का मदीने का जो रोजा ईद करते हैं, हमें भी उससे सब मिल जाए तो बेहतर होगा। और खुसूसन और कोई माने न माने हज तो कम अज कम एक दिन होना। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करने के लिए घरों का रुख किया और जानवरों की कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हम रिश्तेदारों के घर जाएंगे, वालिदैन से मिलेंगे और कुर्बानी करेंगे। इंशाल्लाह अभी नमाज पढ़ी है ईद की और अभी इसके बाद कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी भी एक इस तरह एक इज्तिमाई अमल है और जिसमें अपने ग़ुरबा को याद रखते हैं मुसलमान और इंशाल्लाह ये अमल आज पूरे मुल्क में जारी हो। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत दीगर वज़राओं ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पेशावर। पेशावर के शहरी कहते हैं कि इत्तफाक हो तो सब कुछ मुमकिन है। ईद कुर्बान हमें अमन और मोहब्बत का दर्स देती है। सुन्नत इब्राहिमी हम अदा कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर एक फरीज़ा है और वो अदा कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि ईदगाह के अंदर ये नमाज अदा की गई, SOPs को फॉलो किया, यहाँ पर मास्क पहने लोगों ने। तो खुशी का दिन है और खुशी की तरह एंजॉय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा आपस में जो है तो हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें और ईद को जो है तो बिल्कुल बाकायदा जो है नॉर्मली तरीके से हम अदा करें। ज़ाहिर ईद हमें इसार का दर्स देती है, भाईचारे का दर्स देती है और उम्मत मुस्लिमा के साथ यकजहती का दर्स देती है। इस्लाम अमन और भाईचारे का मज़हब है। आज हम इंशाल्लाह अभी नमाज पढ़ी है ईद की और अभी इसके बाद कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी भी एक इस तरह एक इज्तिमाई अमल है और जिसमें अपने ग़ुरबा को याद रखते हैं मुसलमान और इंशाल्लाह ये अमल आज पूरे मुल्क में जारी हो। सुन्नत इब्राहिमी हमें कुर्बानी और मेल जोल का सबक देती है और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क से इस वबा को दूर करे और हम में अखुवत, भाईचारा और मोहब्बत पैदा करे। ईद कुर्बान किस वजह से कुर्बानी की ईद कहलाती है? उम्मत मुसलमा के इस त्यौहार पर क्या खास होता है? जानवरों की कुर्बानी के लिए कौन सी निशानियां होती हैं? मुसलमानों के इस त्यौहार के बारे में रिपोर्ट तैयार की है कामरान चाहतरी ने। ईद उल अज़हा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस ईद पर जानवरों की कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें से एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों का होता है और तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए होता है। कुर्बानी के जानवर के लिए भी खास अवामल को मद्देनजर रखना जरूरी होता है कि वो हर किस्म के जिस्मानी नुक्स से पाक हो। यही वजह होती है कि हर कोई सेहतमंद और खूबसूरत बकरे, भेड़, दुम्बे, ऊँट या बैल की तलाश में होता है। बड़े जानवर की कुर्बानी में 7 अफराद हिस्सा ले सकते हैं, जबकि छोटे जानवर की कुर्बानी हर शख्स को अलग अलग से करनी पड़ती है। कुर्बानी के अहल जानवर का पता उसके दांत देख कर लगाया जाता है। अगर उसके 2 बड़े दांत हों तो फिर उसे कुर्बानी के काबिल समझा जाता है। ऐसे जानवर को दोंदा जानवर भी कहा जाता है, यानी 2 दांतों वाला जानवर। कुर्बानी के वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी होता है कि जानवर को कम से कम अजियत पहुंचे। ईद पर जानवर ज्यादा होने की वजह से जानवर को ज़िबह करने में महारत रखने वालों की तलब में भी इसीलिए इजाफा हो जाता है। कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करने से पहले खूब खिलाया पिलाया और घुमाया फिराया जाता है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आज ईद कुर्बान का दिन है। कहीं जानवर ज़िबा हो रहे हैं तो कहीं अच्छे से अच्छे खाने तैयार हो रहे हैं, कहीं कीमती कपड़े पहनकर लोग खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बगैर छत के इंतहाई मजबूरी की हालत में ईद मना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे दोस्त मोहम्मद। आज मुल्क भर में जहां लोग ईद की कपड़े ज़ेब तन करके खुशियां मना रहे हैं और तरह तरह के पकवानों से लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं, वहां पे कोरोना लॉकडाउन के बायस ये मुतासरा खानदान उन खुशियों से महरूम है। मजदूर गुलाम नबी टालानी गुज़श्ता 4 माह से बेरोजगार है और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। उसका कहना है कि बीवी बीमार और भूख के बायस बिलखते बच्चे जब रोते हैं तो दिल खून की आंसू रोता है। हम इस तंबू पे रहते हैं, गवर्नमेंट को अपील करते हैं हमको खाने पे कुछ दे दे। ईद है, बड़ा ईद है, हम ईद भी नहीं मना सकते हैं। हम गरीब है, लॉकडाउन में हमारा तबाह हो गया है सारा। हम गरीब बंदे, बहुत कर्जाई हो गए हैं। 4 महीने घर बैठे थे, कोई कारोबार नहीं थे, बीवी बीमार था, कोई इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमने पैसे उठाए राशन वाले से ले लिया था, दुकानदारों से। अभी बाहर निकलते हैं तो हमारे से
वो बोलते हैं हमारे पैसे दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। गुलाम नबी टालानी ने साहिब हैसियत अफराद से मुतालबा किया है कि छोटा सा घर तामीर करके 70,000 का कर्जा चुकाया जाए। कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है, तो वहाँ पाकिस्तान के गरीब और पिछड़े तबके को भी शदीद मुश्किलात और माली मुश्किलात का सामना है। ये गरीब खानदान ईद के मुकद्दस दिन पे भी खाने पीने और बगैर कपड़ों के ईद करने पे मजबूर हैं। मुखैर हज़रात को आगे बढ़ के इनकी मदद करनी चाहिए। कैमरामैन अयास उमरों के साथ दोस्त मुल्ला शहरी, सच न्यूज़, जैकाबाद। उधर लिया में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। 200 के करीब ईद नमाज के इस्तेमाल कोरोना SOPs पर अमल दरामद, सिक्योरिटी की खातिर खा इंतजाम किए गए। ईद उल अज़हा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है, इसलिए इस मौका पर जानवर कुर्बान करने के अमल को सुन्नत इब्राहिमी भी कहा जाता है। आज लिया भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बा से मनाई गई। सुबह होते ही लाखों फर्जंदान इस्लाम ने ईद नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद का रुख किया। जिला भर में ईद नमाज के छोटे बड़े 200 के करीब इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसमें कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए। उलमा कराम ने इस मौका पर अखुवत, भाईचारा समेत गरीबों की मदद की जरूरत पर जोर दिया, तो वहीं कोरोना जैसी वबा से निपटने के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद के फवायद पर रोशनी डाली। ईद नमाज की अदायगी के बाद लोगों ने कुर्बानी के लिए कुर्बान गांव का रुख किया। दिन भर जानवर ज़िबा करने, गोश्त बनाने और गरीबों तक पहुंचाने का अमल जारी रहा। कैमरामैन जुबैर लश्कानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। उधर चकवाल में ईद कुर्बान पर शहर भर की मसाजिद और ईदगाहों में ईद के इज्तिमात मुनाकिद हुए। फर्जंदान इस्लाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बाद में सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए जानवर कुर्बान किए। ईद की बड़ी तैयारियां चकवाल की कदीमी हवेली, जो बाबा घोड़ी वाली हवेली के नाम से मशहूर है, इस हवेली में हर साल की तरह इस साल भी 6 खूबसूरत बैलों की जोड़ियां लाई गई हैं, जिनके मालकान ने उनको खूबसूरती से सजाया है और इन बैलों की जोड़ियों को देखने के लिए दूर दूर से बच्चे और बड़े सब इस हवेली का रुख कर रहे हैं। इधर आते हैं बड़ी दूर दराज से बैल देखने। बैलों की जोड़ी बहुत प्यारी प्यारी आई है। इधर इन बैलों को सजाया गया, अच्छा चारा खिलाते हैं, इनकी बड़ी खिदमत होती है। इस साल भी कदीमी हवेली बाबा घोड़ी वाली में खूबसूरत कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं, जो जोड़े जोड़े करके लाए हैं और बच्चे दूर दराज से इस हवेली में जानवरों को बड़े शौक से देखने के लिए आते हैं और उनकी खूब खातिर तवाज़ा करते हैं। और मैंने 2 बैलों की जोड़ी ली है, खूबसूरत दान ली, और मेरा शौक था जो मैं ना अल्लाह की राह में जो है ना 2 बैल कुर्बान करूं। अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया हूं। यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी के लिए बहुत खूबसूरत बैल लाए गए हैं। यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए लाए गए बैलों के जोड़ों को देखने के लिए बच्चे बड़े सब बाबा घोड़ी वाली हवेली का रुख कर रहे हैं और इन बैलों के जोड़ों को सजा कर इनकी खिदमत कर रहे हैं। कैमरामैन राजा शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। डस्का में भी जोरों शोर से मनाई जा रही है। गली मोहल्लों में अहले इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। बच्चे पसंदीदा जानवर ज़िबा होने पर रंजीदा हैं। गुर्बत का बसेरा तो डस्का के सैकड़ों घरानों में तो है ही, पर कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि इन झोंपड़ियों में रहने वाले खाना बदोश कैसे ईद गुजारते हैं। ईद क्या होती है? इन झोंपड़ियों में हर तरफ भूख, अफलास, नम आंख के काजल की तरह फैली है। यहाँ ईद पर नए कपड़ों, जूतों और चूड़ियों के लिए बच्चों बच्चियों का मुतालबा कभी पूरा नहीं होता। हमारे पास तो ईद के लिए कपड़े भी नहीं है। खाली पेट बुझे चूल्हे के अतराफ बैठे बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं। आज ईद का दिन है, कोई भी जेड़ा ना के गोश्त ले के कोई नहीं है। असी बड़े लोगों दे राह तकने पे हैं ते असी ते गोश्त तो तरसने पे हैं। ईद के दिन भी ये बच्चे मीठे का जायका चख पाते हैं, ना गोश्त और ना ही बच्चियों की हथेलियों पर हिना का रंग उतरता है। इन झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे दूसरों का उतरन पहनकर मट्टी के खिलौने खुद बनाकर खुश हो जाते हैं, जैसे कुल कायनात इनके आंगन में उतर आई हो। ईद पर खाली हाथ बच्चों की आंखें एक सवाल जरूर पूछती हैं कि इनके हिस्सों की खुशियां कहाँ रह गईं। मुखैर हज़रात को ईद की खुशियों में इन खाना बदोशों को भी याद रखना चाहिए। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज़, डस्का। इलाकाई खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में भी ईद कुर्बान पर अहले इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब पुरजोश हैं। कोई गोश्त के हिस्से बना रहा है तो कोई तकसीम करने में जुट गया है। नमाज ईद के बाद भी बड़े बड़े इज्तिमात मुनाकिद हुए।
मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहरियों ने नमाज अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में ईद नमाज अदा की। नमाज में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और नमाज के बाद मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। शहरियों ने नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवरों की कुर्बानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं पे कसाब आने का इंतजार है तो कहीं पर कसाब मिल ही नहीं रहे। बकरे, बैल, भैंस, ऊंटों को बड़े प्यार से सजाकर कुर्बानी के लिए तैयार किया गया। ईद कुर्बान में बड़े तो बड़े लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों का अपना जानवरों के साथ प्यार दीदनी था। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर वासा कंपनी के सीईओ गाजी नवाज और सुप्रीडेंट चौधरी अताउल्ला ने ईद उल अज़हा के रोज शहर भर को गंदगी से साफ रखने के लिए आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है और शहर के मुख्तलिफ जगहों से आलाइशों को उठाने और सफाई करने में मसरूफ़े अमल है। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। दौरे इंग्लैंड के बायस कौमी टीम के खिलाड़ी अपनों से दूर हैं। खिलाड़ियों ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी, कोरोना की वबा के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और समाजी दूरी का मशवरा भी दिया। मैं जिद करके अब्बू के साथ कुर्बानी का जानवर लेने जाना, बकरे, गाय और बैल को गलियों में घुमाना, बारबेक्यू की तैयारी के लिए रिश्तेदार के घर जाना। मैं अपनी सहेलियों के साथ तफरी मकामात पर जाया करती थी। ये सब तो ईद उल अज़हा के रंग है, मगर इस ईद का पैगाम एहसार और कुर्बानी। तो आइए कुर्बानी दें अपनी छोटी छोटी खुशियों की एक महफूज और खुशहाल कल के लिए। मुझे अपने अहले खाना और पाकिस्तान के लिए एक जिम्मेदारी निभाना है। क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं, एहतियात करें और मास्क पहने। कोरोना से पाक और महफूज पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आलमी वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के मुजाहिद ईद के मौके पर भी पेश तिबी अमला अस्पतालों में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए फ्राई सर अंजाम दे रहा है। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद काज़मी। न हाथ मिलाएं और न ही गले मिलें। जी बिल्कुल, खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों को भी बचाएं। मोजी वबा ने ईद कुर्बान पर मेल मिलाप की कुर्बानी मांग ली। इस ईद अजीजों करब से मुलाकात सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मुमकिन है। दौरे जदीद में टेक्नोलॉजी ने शहरियों को एक दूसरे से जोड़ने की हामी भरी तो शहरियों की जान में जान आई। शहरी कहते हैं टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल है जो हमें इन हालात में भी एक दूसरे के करीब किए हुए है। शहरी कहते हैं हम अपने प्यारों से फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स के जरिए न सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि उनको भी खुशियों में शरीक किए हुए हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शहरी कायद में गली मोहल्लों से आलाइशों को उठाने का सिलसिला जारी है, जबकि शहरियों का कहना है कि पिछले चंद सालों के मुकाबले में इस साल आलाइशों को उठाने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। मजीद जानते हैं शहजादा मोइन की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइश उठाने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कलेक्शन पॉइंट बना दिए गए हैं, जहां से मुख्तलिफ आलाइश उठाने वाली गाड़ियां गलियों मोहल्लों से उठाकर मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट पर जमा कर रहे हैं। जबकि शहरियों का कहना है कि पिछले चंद सालों के मुकाबले में इस साल आलाइश उठाने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। निज़ाम बहुत अच्छा है, उठा के लेके जा रहे हैं, साफ सुथरा निज़ाम है, फौरी कार्रवाई हो रही है, बेहतर निज़ाम है, पहले से बेहतर। इस दफ़ा का आलाइशों का जो हिसाब किताब है वो बहुत अच्छा है और सफाई हो रही है, इलाकों में गाड़ियां आ रही हैं और लेके जा रही हैं। मतलब पहले जैसा नहीं है कि वो गलियों में पड़ा हुआ था, इलाकों में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गाड़ियाँ आना जाना लगा हुआ ही है कि जो भी आलाश पड़ी हुई है, कुछ भी यहाँ पे ओजड़ी मोजड़ी पड़ी हुई है, सफाई का अच्छा निज़ाम है। सुबह 6 बजे से मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, और फिर मैंने अपना भी जानवर कटवाया तो गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे। बेहतरीन इलाका, साफ सुथरा है, बिल्कुल गंद कचरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी। इतनी जगह से हम लोग होके आए हैं, कहीं भी हमें गंद हालातें कहीं नहीं मिली हमारे को। जो आ रहा है वो फटाफट बस इधर दिबा हुआ है, इधर लेके गए। आलाइशें वगैरह प्रॉपर्ली उठाई जा रही हैं और सफाई का थोड़ा है मसला, मसाइल इलाके में भी वैसे भी मसले मसाइल हैं, मेन होल्स का, इसका उसका। ये अभी जो आलाइशें हैं ये तो उठाई जा रही हैं। कराची के बेशतर इलाकों में अब भी आलाइश फुटपाथ
खतरात और सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि इंतजामिया आलाइश को कितनी जल्दी साफ करती दिखाई देती है। शहर कायद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर आलाइशें उठाने के लिए कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे शहरी काफी खुश दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि गलियों के अंदर साफ सुथरा माहौल देखकर हमें खुशी हो रही है। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। पाकिस्तान में मुसलसल नए कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात में कमी हो रही है। 24 घंटों में 841 नए कोरोना केसेस सामने आ गए हैं। मजीद 19 अफराद मुज़ी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना मरीजों वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 12वें से 13वें नंबर पर आ गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2,79,146 हो चुकी है, जबकि इस मुज़ी वबा से जाँ भाग अफराद की कुल तादाद 5,967 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस के मुल्क में 25,149 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,146 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,47,890 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 1,21,039 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 93,057 मरीज सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 34,056 हो चुकी है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15,033 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 11,743 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 2,134 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के अब तक 2,084 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,930 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 19,96,167 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 5 अगस्त को कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया। कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म की मजम्मत करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, वो यकजबा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेहसाल मनाएंगे, क्योंकि ये इस्तेहसाल का साल है। इसमें जो कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ, उनका तशख़्ख़ुस मिटाया गया, उनका झंडा गिराया गया, उनके हकूक छीने गए, उन पर जबर मुसल्लत किया गया और वो आज भी उनकी क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। आज भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में शायद ईद का इज्तिमा न हो पाए, मस्जिदों को ताले लगाए गए और इस 5 अगस्त को बीजेपी की आरएसएस सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिस्मार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लिमा उसकी मजम्मत करती है। चौधरी बरादरान ईद पर भी मजलूम कश्मीरियों को ना भूले। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इंशाअल्लाह आज़ादी कश्मीरियों का मुकद्दर बनेगी। चौधरी बरादरान ने नमाज ईद अपनी रिहायशगाह ज़हूर इलाही हाउस में अदा की। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना था कि ईद पर याद रखना चाहिए ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। अफवाज पाकिस्तान हर महाज पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। दुआ करें अल्लाह ताला कोरोना से सबको महफूज रखे। इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज अल्लाह से मुआफ़ी और दुआ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। ईद उल अज़हा पर भी कश्मीरियों पर गैर कानूनी पाबंदियां नाफिज करके घरों में महसूर कर दिया। नमाज ईद भी अदा करने की इजाजत ना दी। कश्मीरियों ने घरों में नमाज ईद अदा की। बुज़दिल भारतीय फौज के हाथों हर रोज तारीख इंसानियत में स्याह तरीन बाब रकम करने का सिलसिला जारी है। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को नमाज से रोकने के लिए ईदगाहों, मसाजिद पर ताले लगा दिए। मकबूजा वादी में रुकावटें खड़ी करके रास्ते खारदार तारों से बंद कर दिए गए। काबिज भारतीय फोर्सेस ने सुबह सवेरे लाउड स्पीकर पर लोगों को घरों में रहने के ऐलानात किए गए, जिसके नतीजे में महसूर कश्मीरियों ने घरों पर ही नमाज ईद अदा की। भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों के बायस वादी में कुर्बानी का फरीजा भी इंतहाई महदूद पैमाने पर अदा किया जा सका। मोदी सरकार के बुज़दिल पैरोकारों ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। RSS और हिटलर के नजरियात की हामिल मोदी हुकूमत और सफाक भारतीय फौज मजालिम ने 5 अगस्त 2019 से मजालिम के
इंतहा कर दी। जुलाई में 26 नौजवानों को शहीद किया गया और 18 अगवा कर लिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नामनहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली के 14 वाकयात मंजर आम पर आए। 5 अगस्त से अब तक 173 कश्मीरियों से जिंदगी का हक छीना गया है, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की है। रवा बरस 170 के करीब जबरी गुमशुदगियों के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक खुशीपुरा का रिहायशी गुलाम रसूल वानी 24 जुलाई की सुबह को घर से निकला और वापस ही नहीं आया। गयूर कश्मीरियों की जुबान पर एक ही सदा, एक ही नारा है कि लेकर रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने भारत के गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदामात आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। कश्मीरी अपने हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। भारतीय सरकार बैरूनी लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दे। अगर भारतीय सरकार हठधर्मी से बाज न आई तो उसके खत्ते पर संगीन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कश्मीरी अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा देते हुए कहा कि वो अपनी जायदाद को किसी भी कीमत पर फरोख्त न करें। शहादा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो कश्मीरियों को अपना हक़ खुद इरादत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे, भारत को मकबूजा इलाके में अपनी रियासती दहशतगर्दी रोकने पर मजबूर करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मंगल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया। जम्मू और बारामूला में भी बादल बरस पड़े। लद्दाख में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि श्रीनगर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ईद पर कुदरत भी मेहरबान। जुड़वा शहरों में बाराने रहमत से मौसम दिलफरेब हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद मतला जुज़वी तौर पर अब आलूद है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। हब्स का जोर भी टूट गया। गुजरावाला, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, टोबा टेक सिंह, बहावल नगर और साहिवाल में बारिश मुतवक्के है। जनूबी पंजाब में डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया, भक्कर, बहावलपुर, रहीमिया खान में पीर और मंगल के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान में योब, बारखान, लोरालई, मुसाखेल, कोहलू, पेशावर, अबटाबाद समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल रंग दिखाएंगे। कराची में समुद्री हवाओं की रफ्तार मामूल से कम होने के बायस हब्स में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने शाम को हल्की बारिश की नवीद सुना दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। जम्मू और बारामूला में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। श्रीनगर और गिरदनवाह में मौसम खुश्क रहेगा। कहा जाता है कि आंखों के रस्ते रूह तक सुकून की मुंतकली में खूबसूरत मनाजिर का बहुत हद तक अमल दखल होता है। कभी कभार खूबसूरत मनाजिर इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसे असरात मुरतब करते हैं कि वो माशरती तलखियों को भूल कर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सुकून रक्स करता दिखाई देता है। कुछ ऐसे ही खूबसूरत मकाम के बारे में रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद आसिफ ने। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियानी मकाम पर वाक़े दो खूबसूरत पहाड़ों की आगोश में दिलफरेब कुदरती मनाजिर से मालामाल वादी मूणा अपने दामन में कुछ ऐसी खूबसूरती समोए हुए है कि देखने वाली आंख पर ऐसी कैफियत तारी होती है कि वो शख्स लम्हों के अंदर ही माजी की जिंदगी से बेखबर हो जाता है। वादी मूणा के कुदरती और हसीन नजारे, खामोशी पर तंज करती खामोशी में चहचहाते परिंदों की खूबसूरत मधुर आवाजें इंसान पर ऐसे असरात मुरतब करती हैं जिनको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सरसब्ज पहाड़ों की खूबसूरती में वाक़े चंद घरों पर मुश्तमिल वादी मूणा के मकीनों का जरिए मुआश कानकुनी और खेती बाड़ी है। जी हमारे मूणा गुडीहेल हैं या स्कूल पहल कल हुकूमत का करगर की सफर है। न रोड है, न स्कूल है, न अस्पताल है। रोड का मसला है, पानी का मसला है। एक तरफ तो दुनिया ग्लोबल विलेज में पहुंच चुकी है, मगर दूसरी जानिब वादी मूणा के मकीन रोड, बिजली, स्कूल और दीगर जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूमी के बावजूद भी सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। शायद जिसमें कुदरती मनाजिर और वादी की खूबसूरती का बड़ा अमल दखल है। स्कूल ना होने की वजह से यहाँ बच्चों को दुनियावी तो नहीं मगर सायादार दरख्तों तले दीनी तालीम जरूर दी जाती है। मूणा और KPK का इलाका जिला करक में आता है। हमारा न रोड है, न बिजली है, न अस्पताल है। काफी दुश्वार में पड़ जाता है क्यों जो पंजाब काफी दूर है और KPK काफी दूर है, क्योंकि पंजाब की तरफ 10-15 किलोमीटर सफर है, KPK की तरफ 40-50 किलोमीटर सफर है। हम बाउंड्री के रहने वाले हैं। ना हमारा स्कूल है, न अस्पताल है, कुछ भी नहीं है।
اور سیر تفریح کے لیے بہت اچھا علاقہ ہے, بہت زبردست علاقہ ہے. اگر روڈ آ جائے, اسکول آ جائے, کوئی اور سہولت آ جائے تو بہت بہتر ہوگا. پنجاب کے دیگر علاقوں تک رسائی کے لیے وادی موڑا کے مکین دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گھنٹوں پر معید پیدل مسافرت کے بعد میاں والی کے علاقہ خٹک بیلٹ پہنچتے ہیں, جہاں سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے دیگر شہروں میں جا کر اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان خرید لاتے ہیں. وادی موڑا کی خوبصورتی حکومتی توجہ کی طلبگار ہے. اگر حکومت توجہ دے تو وادی موڑا کا یہ خوبصورت دلکش علاقہ سیاحتی مقام کی حیثیت حاصل کر سکتا ہے, جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار میسر آئے گا بلکہ ملک میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. کیمرامین عبدالغفار بھچر کے ساتھ محمد آصف, سچ نیوز, میاں والی. گھر نہ صرف احساس تحفظ دلاتا ہے بلکہ موسم کی سختیوں سے بھی بچاتا ہے. انسانی ہاتھوں سے بنائے محلات اپنی جگہ, مگر ایک چھوٹے سے پتنگ کمہاری کے گھر کو آپ دیکھیں تو اس کی کاریگری پر حیران رہ جائیں گے. اسے اپنا گھر بنانے میں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے, یہ بتا رہے ہیں عبد المجید باٹی. یہ ہے کمہاری جو فن تعمیر کا شاہکار بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. افزائش نسل کے لیے گھر کی دیواروں اور کونوں خدروں میں مٹی کے ایک جگہ پر کئی گھر بناتی ہے. یہ جفا کش پتنگا ایک گھر بنانے کے لیے 20 بار اپنے وزن سے بھی زیادہ مٹی کا ڈھیلا بنا کر مطلوبہ جگہ تک لاتی ہے, جسے منہ اور پاؤں کی مدد سے تہ در تہ ایک گھر کی تکمیل کا عمل پورا کرتی ہے. اس دوران موسم کا سخت گرم ہونا ضروری ہے تاکہ ایک اڑان سے دوسری اڑان کی واپسی تک پہلے والی مٹی خشک ہو جائے. یہ پتنگے 3 مختلف رنگ و نسل میں پائے جاتے ہیں, جن میں پہلی 2 نسل کی مادہ اپنے گھر بناتی ہیں, جبکہ نر گھروں کی حفاظت کے علاوہ خوراک کا بندوبست بھی کرتے ہیں. جبکہ تیسری گہرے نیلے رنگ کی کمہاری اپنا گھر بنانے کی بجائے انہی کے گھروں میں انڈے دے کر غائب ہو جاتی ہے. مٹی کے یہ گھر عموماً لمبوترے اور بیضوی شکل میں ہوتے ہیں. ہر گھر کی تکمیل کے بعد مادہ اس میں ایک انڈا دیتی ہے اور ساتھ ہی نو مولود کی خوراک کے لیے ایک سنڈی یا مکڑی رکھ کر مٹی سے گھر کا منہ بند کر دیتی ہے, جس میں صرف ایک سفید رنگ کا لاروا بنتا ہے جو اپنی اصل شکل میں آنے کے بعد گھر کے اندر سے سوراخ کر کے باہر نکل کر پہلی اڑان کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ پھولوں کے رس سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے. ان کے گھر سال ہر سال تک قائم رہتے ہیں, جبکہ موسم گرما میں نہ صرف اپنے پہلے والے گھروں کو مرمت کرتے ہیں بلکہ نئے گھر بھی بناتے ہیں. کیمرامین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی, سچ نیوز, کبیر والا. مغلیہ دور کے بادشاہوں کی پرکشش عمارات اور باغات سے دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, اور برصغیر میں سلطنت مغلیہ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں. مغل بادشاہ جہاں سے بھی گزرے وہاں اپنی آمد کی نشانی چھوڑ گئے. بھکر کا تاریخی دلکشا باغ اب بھی اس کی ایک مثال ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ناصر عباس. مغل دور کے بادشاہوں کی پرکشش عمارات اور باغات سے دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, اور برصغیر میں سلطنت مغلیہ کے انمٹ نقوش اب بھی موجود ہیں. مغل بادشاہ جہاں سے بھی گزرے وہاں اپنی آمد کی نشانی ضرور چھوڑ گئے. بھکر کا تاریخی دلکشا باغ اب بھی اس کی ایک مثال ہے. بھکر شہر کے غربی جانب دریائے سندھ کے کنارے آباد تاریخی باغ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی بیٹی مہر النساء نے دریائے سندھ کی آبی گزرگاہ کے وسط میں لگوایا, اب جسے بعد ازاں سدوزئی قبیلہ کے سردار محمد خان سدوزئی نے وسعت دی. شہزادی مہر النساء نے دوران سفر اس مقام سے گزرتے ہوئے ایک کنواں بھی کھدوایا جس کا پانی بہت میٹھا تھا. انہوں نے یہاں کافی عرصہ پڑاؤ بھی کیا اور باغ لگوایا جس کا نام دلکشا باغ رکھا گیا. انہوں نے بیٹھنے کے لیے 2 تخت بھی بنوائے جن کے آثار اب بھی موجود ہیں. دلکشا باغ کا رقبہ تقریباً 80 ایکڑ پر مشتمل ہے. دلکشا باغ میں آم, کھجور, جامن اور دیگر مختلف اقسام کے پھلدار درخت موجود ہیں جن میں کھجور نمایاں ہے. یہ درخت زیادہ تر انگریزوں کے دور میں لگائے گئے تھے. باغ میں کھجور بسرا اپنے ذائقے اور مٹھاس کے باعث انتہائی مشہور و مقبول ہے. سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی دلکشا باغ آج بھی علاقہ بھر میں سب سے پرکشش تفریحی مقام گنا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دلکشا باغ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور صرف شہر میں ہی نہیں قریبی اضلاع کے شائقین خصوصاً سکولوں کے طلبہ و طالبات پکنک منانے کی غرض سے یہاں آتے ہیں. دلکشا باغ میں سیاحوں کے لیے گراسی لان اور بچوں کی تفریح کے لیے جھولے اور کھیلوں کا خاطر خواہ سامان موجود ہے. مختلف میٹھی روایتی بولیوں میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور مسحور کن آوازیں یہاں آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. باغ کا نظم و نسق محکمہ جنگلات اور محکمہ زراعت کے پاس ہے. گھنے درختوں اور کھجوروں سے بھرے اس باغ میں مغلیہ دور کے نشانات کو تو محفوظ نہیں رکھا جا سکا,
ताहम भक्कर के शहरियों के लिए ये एक उम्दा तफरीह गाह जरूर है। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के हमरा नासिर बासुलोज, सच टीवी, भक्कर। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाकाई या कौमी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk और देखते रहिए सच न्यूज।